Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky vlog. This is going to be very different. I am specifically making a video on my fitness routine, what I eat in a day, my workout split, how I take care of my hair and skin with all the gym germs as well as the sweating, the PCOD, the everything. I did this poll. बहुत ज़्यादा majority say this was a big yes. And today is a Monday. I try to work out 4 out of the 7 days of the week. So week का workout start करते हैं without any further ado, let's get started. I'm all changed into my workout clothing. This is what I wear to the gym mostly. Now I do get a lot of questions कि मैं gym में क्या पहनती हूँ, what kind of sports bra do I wear. Now this part of the video is not sponsored at all. This is a set from Kivo Fit. बहुत ही अच्छी इसकी sports bra, बिल्कुल नीचे तक आती है, यहाँ पे खत्म नहीं होती. Very beautiful supportive back right here. यहाँ पे भी बहुत ही cinched material आता है. कपड़ा बहुत ज़्यादा soothing है, इसमें ऐसे polyester वगैरह वाला blend नहीं होता. It's very breathable. I have this set right here purple में, and the set that started it all, this was the first thing that they sent to me as PR. I loved this. I am in the size medium. I forgot my favorite Life and Jam. ये मैं आज पहनने वाली हूँ. I love these muscle tees. ये ribbed fabric में होती है. And in case you're not comfortable with this kind of clothing, like मैं सिर्फ sports bra और leggings में नहीं जाना चाहती gym, I wear this top to just cover myself a little bit more. Like this. So this just gives me a little bit of shape as well as थोड़ा सा खुलापन. These are the shoes that I wear. They are from Onitsuka Tiger and ये actually मेरे dad के हैं, but मेरा dad और मेरा पैर का size almost similar है, so I'm wearing these. As you can see, ये वाले जो shoes है यहाँ से flat है, हल्का सा bounce सिर्फ पीछे heel पे आता है, so I like this for cardio as well as compound exercises जिसमें I need some more stability. In case you are someone who is struggling with fat loss, weight loss या in general normal fitness as well as some financial issues that you are not able to afford personal training or nutritionists or dietitians, but you really want to get fit, I want to make it easy for you guys. जितनी भी मेरी knowledge है, जितनी भी मेरे को trainers and doctors बताते हैं, वो मैं अपनी life के हिसाब से जो कर रही हूँ वो share कर सकती हूँ, and उसमें से अगर आप कुछ भी लेना चाहो, feel free to do so because I want to help my girlies out here. So this is the picture that I've shown to my trainer, जो कि मुझे body goals अपने साल के end तक चाहिए. So according to this trainer sir जो जीत गुलिया है Anytime Fitness में, उन्होंने मेरा पूरा वर्कआउट स्प्लिट डिवाइड किया है कि मेरे ये वाले बॉडी पार्ट्स पे वर्क हो. सो डे 1 मंडे इज फॉर साइड्स एंड क्वाड्स, जो आपके थाई का अपर रीजन होता है, एंड दैट इज व्हाट वी गोना ट्रेन टुडे. आई एम ऑन माय वे एंड गोना रीच इन लाइक 2-3 मिनट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वार्म अप से. आपको अपने नेक साइड टू साइड लेके जाने हैं, अपने कंधों तक जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो. दीज आर डायनामिक स्ट्रेचेस. 10 टाइम्स करना है एंड देन अप डाउन भी आपको 10 टाइम्स करना है. देन वी विल स्टार्ट विद शोल्डर की रोटेशंस, तो इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स 10 ईच. उसके बाद हम आएंगे रिस्ट रोटेशंस पे, तो आर्म एक्सटेंड करके इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स 10 टाइम्स ईच. देन हम आते हैं कमर की रोटेशन पे, ये भी आपको इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स करनी है 10 टाइम्स ईच. देन वी डू नी रोटेशंस. लेग डे के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यूजुअली भी कर लेनी चाहिए, 10 टाइम्स ईच इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. देन हिप रोटेशंस आएगी, एक वॉल का सहारा लेके इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स 10 टाइम ईच कर लेना दोनों ही साइड पे. एंड देन एंकल रोटेशंस, दोनों पैर की इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स 10 टाइम्स ईच. दीवार पे लग के आपको ऐसे ट्विस्ट करना है एंड पीछे जाते टाइम अपने आप को प्रेस करना दीवार की तरफ. ये आपके साइड्स एंड आपके कोर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. देन ये भी साइड्स के लिए बहुत अच्छी है. पूरा फुल एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड 10 टाइम्स ईच साइड करना है. उसके बाद मैं करूंगी जंप 20 टाइम्स फॉलोड बाय जंपिंग जैक्स व्हिच इज आल्सो 20 टाइम्स. एंड उसके बाद ऐसे ट्विस्ट करना है 50 टाइम्स, 25 टाइम्स ईच साइड हो जाएगी. देन पूरा सुमो स्क्वाट की पोजीशन में बैठ के फुल अपनी आर्म पीछे तक एक्सटेंड करनी है, जहां तक आपको ऊपर सीलिंग दिखे. यू हैव टू डू दिस 20 टाइम्स. देन ऐसे स्ट्रेच करना है, जो पैर आगे होगा वो हाथ उस साइड का ऊपर नीचे एक्सटेंड होगा पूरा पीछे की साइड. देन ऐसे आधा सूर्य नमस्कार टाइप का ये होता है, जिसमें आपको ऊपर से स्टार्ट करके फुल स्ट्रेच करना है. देन फिर पीछे आना है एंड यू हैव टू रिपीट इट 5 टाइम्स. नाउ ये होता था मेरा वार्म अप लास्ट ईयर, बट बिकॉज ऑफ माय बॉडी गोल्स मेरी 2 एक्सरसाइजेस के 5 सेट और ऐड किए सर ने. वन ऑफ देम आर दीज लंजेस वाली वॉक, जिसमें 5 किलो का बोरा मुझे बार बार घुमाना पड़ता है, तो इससे शोल्डर और बैक की भी एक्सरसाइज हो जाती है. साथ में लंजेस तो वो क्वाड्स वगैरह एंड ग्लूट्स पे भी फोकस करता है, क्योंकि आपको अपना बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो आपकी कोर भी एंगेज्ड होती है. देन ये खंबे पे रेजिस्टेंस बैंड बांध के मुझे जितना मैं जंप कर सकती हूँ दूर तक अपने आप को खींच के जंप करना है एंड लैंड करना है इन अ स्क्वाट पोजीशन, ताकि फिर से मेरी कोर एंड मेरी लोअर बॉडी पे अच्छे से वर्क हो. ये मुझे 15 बार करना है एंड इन दोनों ही एक्सरसाइजेस के मुझे 5-5 सेट करने हैं. सो एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, आज मेरे क्वाड्स और साइड्स है. सबसे पहले हम क्वाड्स की एक्सरसाइज करें, व्हिच आर गॉबलेट स्क्वाट्स. नीचे एक प्लेट रख लेना 15 किलो की, एंड आप देख रहे हो मेरे पैर कैसे वी शेप में है. मेरी हील का आधा पोर्शन पीछे का
पूरा उस पे चढ़ा हुआ है एंड देन 15 किलो की मैंने डंबल ली है एंड मैंने 15 स्क्वाट्स किए हैं। ऐसे ही 15 करके मुझे 4 सेट करने हैं इस एक्सरसाइज के। देन वी मूव ऑन टू द सेकंड एक्सरसाइज व्हिच आर दीज लंजेस, बट इसमें मेरी नी मेरे पैर के भी आगे बढ़नी चाहिए एंड जब मैं पीछे आती हूँ तो मैं अपने टोज से पुश कर रही हूँ। इससे आपके क्वाड्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। दोनों पैरों की 15 ईच साइड। इफ यू आर अ बिगिनर तो आप 10 ईच साइड भी कर सकते हो। देन यू हैव टू रिपीट इट। तो टोटल 4 सेट होने चाहिए इस एक्सरसाइज के भी। आफ्टर दिस टू फील मोर बर्न मैं गई लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज पे। इसमें सर ने मुझे स्पेसिफिकली बोला था पैर सीधे रखने हैं, बिल्कुल भी ऐसे कर्ल नहीं करने हैं मशीन पे एंड ऊपर आके 2 सेकंड पॉज देना है एंड धीरे धीरे नीचे आना है। इससे आपको फुल कॉन्ट्रैक्शन अपने क्वाड्स में फील होती है एंड काफी ज्यादा बर्न होता है। आई एम गोना शो यू गाइज माई POV। ऐसे ही आपको फील होना चाहिए जैसे आप ऊपर लाते हो, 2 सेकंड पॉज करो, धीरे 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 वेट को फील करते हुए नीचे लाओ। इसके बाद आई एम डूइंग माई साइड। तो पैर फैला के पूरा नीचे तक जाना है। 5 किलो का डंबल मैंने लिया है, तो आप हल्का भी ले सकते हो। इफ इट इज वेरी लाइट फॉर यू तो आप ज्यादा भी ले सकते हो, 7.5 या 10 kg का। दोनों साइड में ऐसे नीचे जाके ऊपर करना है। सारी ही एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से 10 से 15 रेप कर लेना एंड इनके 4 सेट ईच करने हैं। देन साइड्स की एक और एक्सरसाइज है विच इज साइड प्लैंक। अगर ये आपके लिए मुश्किल है बिल्कुल सीधा हाथ रखना तो आप अपनी कोनी भी नीचे रख के साइड प्लैंक कर सकते हो। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब सर ने मुझे 45 सेकंड होल्ड करने को बोला था एंड आई हेल्ड द प्लैंक फॉर 1 मिनट स्ट्रेट एंड देन रिपीट द सेम थिंग ऑन द अदर साइड। सारी एक्सरसाइजेस के 4 सेट करने हैं। आफ्टर माय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज डन, इसके बाद कार्डियो की बारी आती है। यूजुअली जिस दिन मैं ग्लूट्स या फिर क्वाड्स ट्रेन करती हूँ तो मैं स्टेयर मास्टर करना पसंद करती हूँ 5 to 10 मिनट्स ओनली। एंड क्वाड्स के लिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि 5 to 8 की स्पीड पे आप एक स्टेप स्किप करके चढ़ो ना तो और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगले दिन आपकी बहुत सोर मसल्स होंगी बट बिलीव मी इससे आपके लेग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड आफ्टर सच एक्सरसाइज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कूल डाउन एंड डू योर स्ट्रेचेस। थोड़ा सा अपनी सांस को नॉर्मल आने दो, अपनी बाजू थोड़ा ऐसे खींच के ऊपर होल्ड करो। जो शुरू में होते हैं ना वो डायनामिक स्ट्रेचेस होते हैं तो आपको वो कंटिन्यूअसली करने होते हैं एंड जो कूल डाउन वाले स्ट्रेचेस होते हैं एकदम एक्सरसाइज के लास्ट में उसमें आपको होल्ड करनी होती है पोजीशन एंड वो स्ट्रेच को होल्ड करके रखना होता है ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम शोइंग यू एवरीथिंग फ्रॉम साइड वाले एंगल से भी ताकि आपको पता चले कि कैसे लगता है। दीज काइंड ऑफ स्ट्रेचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैक एज वेल एज क्वाड्स एज वेल एज लेग्स एंड अपर बॉडी की भी अगर आपने एक्सरसाइज की हो तो ऐसे करके थोड़ा ट्विस्ट वगैरह कर लो, अपनी बॉडी अच्छे से खोल लो एंड देन थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो एंड दैट्स अबाउट इट। इट्स डे 2 ऑफ माई वर्कआउट एंड आज हमें करनी है ट्राइसेप्स विच इज लाइक दिस रीजन, ये जो पीछे वाला रीजन होता है बाजू का। वी ऑल्सो हैव एब्स। एट द सेम टाइम वी हैव इंड्योरेंस विच आई हेट द मोस्ट बिकॉज उसमें मेरी सांस चढ़ने लगती है, मुझे लाइट हेडेड फील होने लगता है, मुझे चक्कर आने लगता है। एंड जब मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था इट किल्ड मी ऑलमोस्ट। आई फेल्ट लाइक आई कांट डू दिस एनीमोर। एंड उस टाइम पूरा एक इंड्योरेंस डे होता था एंड आई स्पेसिफिकली टोल्ड माई ट्रेनर सर कि मैं ये नहीं कर सकती, आप इसे मेरे वर्कआउट्स के बीच में इंक्लूड कराया करो। वी हैव टू गो विद द स्लो पेस, मुझे कोई जल्दी नहीं है पतला होने की। सो उन्होंने ऐसा प्लान अभी भी बनाया हुआ है मेरे लिए, जैसे ट्राइसेप, एब्स और बीच में थोड़ा सा इंड्योरेंस करा देंगे जिससे मेरी हार्ट रेट वगैरह जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस होती है, जो मेरी थोड़ा स्टैमिना होता है वो बढ़ता है बट एट द सेम टाइम आई डोंट फील लाइक आई एम डाइंग लिटरली। फॉर एग्जाम्पल मुझे PCOD है तो PCOD में अगर आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल दोगे तो मेरे अंदर जो कॉर्टिजोल, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो अवेयरनेस एंड अलर्टनेस का हार्मोन होता है वो राइज हो जाएगा एंड मोर कॉर्टिजोल मीन्स कि मैं अपना फैट और ज़्यादा मेरी बॉडी स्टोर करने लगेगी। इट जस्ट पुट्स माई बॉडी इनटू अ फाइट और फ्लाइट मोड एंड वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे को एंजॉय करते करते एक्सरसाइज करनी है, समथिंग दैट फील्स रियली नाइस। सो या endurance करते even though I hate it, I have to do it but not to that level where I feel like I can't do this anymore. So let's go फॉर डे 2। सो वार्म अप करने के बाद मैंने वही 2 एक्सरसाइजेज जो न्यूली ऐड हुई है कि रेजिस्टेंस बैंड वाली एंड देन ये जो लंजेस वाली वॉक थी। तो क्योंकि आज ट्राइसेप, एंड्योरेंस और एब्स है, 3 एक्सरसाइजेस का एक सर्किट चलता है और उस 3 एक्सरसाइजेस के हमें 4 सेट करने होते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज अ नीलिंग ट्राइसेप पुशअप जिसमें आप ऐसे नील कर रहे होते हैं, पीछे आपको नीज रखनी होती है एंड आपको हाथ अपने बहुत पास रखने होते हैं, एकदम नमस्ते टाइप के, एंड ऊपर आना होता है। इससे आपके पीछे ट्राइसेप पे बहुत प्रेशर पड़ता है। इसको करते ही विदाउट सांस लिए आगे पीछे जंप करनी होती है। 100 जंप्स इसके करने हैं। देन एंड्योरेंस के बाद एब्स करनी है। तो ऐसे इंक्लाइन वाली एक मशीन होती है, आप नॉर्मल मैट पे भी अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्ट कर सकते हो। आई स्टार्टेड दैट वे। तो 15 मुझे ऐसे सिट अप वाले क्रंचेस करने हैं जो पूरा ऊपर तक आना है। ये इंक्लाइन वाले हैं तो इससे और ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना। ये 3 सर्किट के मुझे 4 सेट
करने हैं। इसके बाद सर्किट नंबर 2 शुरू होगा। सो सबसे पहले हम ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हैं। 5 किलो का डंबल मैंने लिया है एंड एक एक ट्राइसेप को ऐसे पीछे पूरा डिप करके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट हाथ करना है, ताकि ट्राइसेप में एकदम फील हो जो प्रेशर और वो एक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसको करते ही बिना सांस लिए साइड वाइज मेरे को जंप करना है। ये मुझे 100 जंप्स करने हैं। उसके बाद फिर वही इंक्लाइन वाली जो मशीन होती है, इस पे मुझे लेग रेजेस करने हैं। तो नीचे जाके बिल्कुल ऊपर उचक के आपको थोड़ा सा बाउंस करना है, एकदम ऊपर आसमान छू लेने वाले जो लेग रेजेस होते हैं वो करने होते हैं एंड ये मुझे 15 करने हैं। ये एक सर्किट है 3 एक्सरसाइजेस का एंड इसके मुझे 4 सेट करने हैं। नाउ सर्किट नंबर 3 स्टार्ट होता है ये वाली केबल ट्राइसेप पुश डाउन वाली एक्सरसाइज से। इसमें मैंने आई थिंक 11 kgs अटकाए हुए हैं। यहाँ पे जो रॉड आपको डालनी होती है एंड देन आपको नीचे पुश डाउन करना होता है, ताकि जो पीछे ट्राइसेप है उसमें पूरा आपको फुल फोर्स फील हो। लेट मी शो यू गाइज, यहाँ पीछे से आपको दिख रहा है, मिरर में भी दिख रहा है कि कहाँ मेरी मसल पंप हो रही है। दैट इज द ट्राइसेप मसल। इसके 15 रेप्स करने के बाद मैंने 3-3 kg के छोटे डंबल लिए हैं एंड मैं बॉक्सिंग सॉर्ट ऑफ स्टेप कर रही हूँ। ये मुझे 100 बार करना है। हाथ के साथ पैर भी आगे पीछे होते जाएंगे सिंक में। तो करते ही विदाउट एनी रेस्ट, ये जो सर्किट है इसमें रेस्ट नहीं लेना होता है। फिर से वही इंक्लाइन मशीन में आ गई एंड मैं साइड क्रंचेस करूंगी ऐसे ट्विस्ट वाले। सो एक टांग आपको ऊपर ऐसे रखनी है एंड देन दूसरी की तरफ ऑपोजिट ऐसे करके ट्विस्ट करके आना है क्रंचेस करने। दिस इज वेयर आई स्ट्रगल दी मोस्ट, क्योंकि इस टाइम तक हालत पूरी टाइट हो जाती है। विदाउट रेस्ट एक्सरसाइज करनी होती है एंड यू गाइस कैन सी कि मेरी स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई है, बट वी डिड इट एनीवे। 10 ईच साइड किया एंड उसके बाद 10 मिनट कार्डियो किया। आई डिड इंक्लाइन वॉकिंग विच वॉज प्रिटी रिलैक्स्ड। मैं 15 जो मैक्सिमम होता है उस पर इंक्लाइन रखती हूँ एंड स्पीड 2.5 to 3.5 ही रखती हूँ। टुडे इज डे 3 एंड वी आर डूइंग लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स, व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट डेज। आई रियली एंजॉय दिस एक्सरसाइज। रात को मैं ठीक से सोई नहीं, सो इट्स द बेस्ट वे टू पंप माई सेल्फ अप बैक अगेन। सो अपनी शुरू की 2 एडेड एक्सरसाइज करने के बाद मैंने गुड मॉर्निंग करनी थी। नाउ गुड मॉर्निंग में यूजुअली हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स वर्क होते हैं एंड उसमें नीज बिल्कुल बेंड नहीं होनी होती है, लेकिन इस बार सर ने मुझे 20 किलो की रॉड अपने पीछे पीठ पे रखने को कहा एंड जैसे ही मैं गुड मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज कर रही थी, नीचे मुझे नीज भी बेंड करनी थी। सो दिस इज कॉल्ड अ स्क्वाट गुड मॉर्निंग, जिसमें स्पाइन न्यूट्रल रखनी होती है बट पीछे हिप्स पुश बैक करना होता है। जैसे ही आप हिप्स पीछे पुश बैक करते हो तो आपको स्लाइटली नी बेंड भी करना होता है नीचे जाके एंड वापस सीधे आने पे आपको अपने ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड वो फील करना है अच्छे से इंटेंसिटी। देन मुझे यूज करनी थी हिप एबडक्टर मशीन एंड इसमें जैसे ही आपको वेट जितना आप उठा सकते हो इसको आप पीछे करते हो खोलने के लिए। इससे आपकी साइड वाली हिप की जो मसल है वो स्ट्रांग होती है एंड अच्छी शेप आती है आपकी बॉडी की। तो पीछे करते ही आपको होल्ड करना है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस से वापस लाना है। इसके भी 10 रेप का एक सेट बनता है और ऐसे 4 सेट करने हैं। देन दिस वाज अ न्यू एक्सरसाइज जो मुझे सर ने पहले कभी नहीं कराई थी, सो इवन आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस वन, लेकिन मैंने बेसिकली 20 किलो की रॉड ली थी एंड इसको साइड टू साइड ऐसे ही फॉर्म में करना था जैसे फर्स्ट वाली गुड मॉर्निंग की थी। नीज थोड़ी सी बेंड रखनी है, पैर अपने शोल्डर जितने ही खोलने हैं एंड एक साइड से दूसरी साइड करते टाइम आपको अपनी हिप्स पीछे करनी है हिंज करके एंड देन जब वापस ला रहे हो तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील करना है। देन बारी आती है लेग कर्ल मशीन की। ये भी आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छी होती है। सो इसमें मैंने आई थिंक 5 या 10 kgs की ही प्लेट लगाई थी। ईच साइड आपको 10-10 रेप्स करने हैं एंड जब 20 हो जाए इन टोटल वो एक सेट माना जाएगा एंड ऐसे आपको 4 सेट करने हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फोकस्ड ऑन ग्लूट्स एंड माई लोअर बॉडी एंड बैक दिस ईयर, तो इस बार सर ने मुझे हिप थ्रस्ट कराने सिखा दिए। सो आज मैंने 70 kgs के इन टोटल हिप थ्रस्ट किए, जिसमें आपको पैर अपने आसपास ही रखने होते हैं, बहुत ज्यादा वाइड नहीं करने होते हैं एंड जब आप ऐसे स्ट्रेट आओ ना ऊपर पुश करके तो आपका 90 डिग्री एंगल पैरों का बनना चाहिए एंड बिल्कुल आपकी कमर सीधी होनी चाहिए एंड ऊपर आते हुए जोर की ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। यू हैव टू फील द बर्न। आई एम डन विद माई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ग्लूट्स की अच्छी एक्सरसाइज की, a lot of hamstrings and lower back exercises। कल लोअर बैक दर्द होने वाला है बट आई एम इन द कार्डियो विंग राइट नाउ एंड सर ने मुझे बोला 15 मिनट 15 पे इंक्लाइन वॉकिंग। स्पीड मुझे बोली है 5। लेट्स गो। अब ये फटाफट बढ़ जाएगा। ओह माय गॉड। शुरू में मुझे थोड़ा सा बैलेंस बनाने में टाइम लगता है तो मैं पकड़ के करती हुई, बट वंस आई गेट यूज्ड टू द स्पीड देन आई कैन वॉक जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज डे 4 आउट ऑफ द 4 days I work out एंड आज हम करेंगे होल बॉडी मूवमेंट्स, साइड्स एंड एब्स। Core exercises are a big part of my workout routine, so let's go kill it. By now you guys know कि मुझे ये लंज वॉक करनी है, बोरिया बिस्तरा उठा के अपना एंड देन ये रेजिस्टेंस बैंड वाले जंप्स करने हैं। इसके बाद क्योंकि आज होल बॉडी मूवमेंट्स थी एंड हमें नॉर्मल स्क्वाट्स करने थे, पर साथ में मुझे 15 kg एंड देन 20 kg की ये रॉड दी थी जिसको मेरे को ऊपर आते टाइम बिल्कुल ऊपर पुश करना था। 15 रेप्स से एक सेट बनता है और ऐसे 4 सेट करने हैं। आई नो के 5 kg का नहीं है रेड वाला, पर ये केटल बेल लेके अपने पैर पूरे वाइड करके स्ट्रेच करना है, इनर थाई में स्ट्रेच
जाना चाहिए करते टाइम। यू हैव टू डू 15 ईच साइड विच मीन्स 30 एंड ये 30 का एक सेट होता है, ऐसे 4 सेट करने हैं। एंड ये जो 5 किलो का बोरा मेरी जान नहीं छोड़ता वो इस एक्सरसाइज में भी आ गया। नॉर्मल ऐसे सिटअप्स टाइप के करने हैं, जैसे ही आप बैठोगे वैसे ही आपके हाथ ऊपर जाएंगे एंड ऐसे आपको 15 करने हैं। 15 का एक सेट विच मीन्स 4 सेट करने हैं। देन इसमें भी थोड़ा स्क्वाटिंग पोजीशन में ही आना है, उसके साथ साथ ये नीचे जाएगा डंबल एंड जैसे ही ऊपर आप आओगे पुश करने से पहले आपको नी बेंड करके एक बार अपने आप को ऐसे हैव टू गिव इट अ जर्क। ईच साइड 15 विच मीन्स 30 का एक सेट है, ऐसे 4 सेट करने हैं। आफ्टर दैट आई एम डूइंग दिस हाफ नीलिंग केबल रोटेशन एंड इट्स ग्रेट फॉर टारगेटिंग योर ऑब्लिक्स एज वेल एज कोर। इसमें आपको हाफ नीलिंग पोजीशन में आना है। यू हैव टू होल्ड द केबल विद बोथ हैंड्स, अपने चेस्ट को बिल्कुल लिफ्टेड रखना है, कोर को एकदम टाइट रखना है एंड पुल द केबल अक्रॉस योर बॉडी हॉरिजॉन्टली। इसमें सिर्फ आपका टॉर्सो रोटेट होगा, अपर बॉडी रोटेट होगी, नीचे को हिलाना तक नहीं है। कीप योर हिप्स एक्सट्रीमली स्टेबल। जब आप खींच के तार को वापस लाते हो तो धीरे धीरे स्लोली जाना है एंड एकदम पुल करते हो तो झटके से पुल करना है। 10 reps each side which means 20 का एक सेट है एंड ऐसे 4 सेट करने हैं। So this was my 4-day workout split. Let's move on to how I take care of my skin, hair and body with all the gym germs, sweating, PCOD, followed by what I eat in a day to lose weight but keep my protein intake high. This is my post-gym skincare routine. I use this Dr. Althea 345 Relief Cream Mist on my face because I don't want anything creamy or heavy. So I just spritz it all over my face as well as neck. And then I apply this Hyphen का जिंक सन मिल्क वाला सनस्क्रीन बिकॉज इस सनस्क्रीन से मेरे को एक्ने वगैरह कुछ नहीं होते एंड इट्स वेरी लाइट वेट फॉर द जिम एंड इट हैज़ नॉट क्लॉग माई पोर्स। ऑल्सो जिंक वाले सनस्क्रीन दे हेल्प विद एक्ने प्रोन स्किन, सो आई रियली लाइक द टेक्सचर ऑफ दिस वन। इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ वाइट कास्ट बट आई डोंट माइंड इट एट द जिम। फॉर अंडर आर्म केयर, विश केयर का अंडर आर्म रोल ऑन, दैट इज अबाउट इट। इसको मैं थोड़ा अंडर आर्म से लगा लेती हूँ, थोड़ा जहाँ जहाँ पे स्वेटिंग होती है वहाँ पे लगा लेती हूँ ताकि मेरे से अच्छी खुशबू आए, बदबू ना आए। वंस माई वर्कआउट इज डन मैं ये HOCL स्प्रे लेती हूँ मिनिमलिस्ट का। ये स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी हेयर लाइन और स्किन पे इसको अच्छे से स्प्रे कर लेती हूँ एंड देन बाकी बॉडी पार्ट्स पे एंड स्पेशली मेरे हैंड्स एंड जो मेरी एल्बो है वहाँ पे आई स्प्रेड्स दिस सैनिटाइजर एंड दैट इज अबाउट इट। नाउ दिस इज नॉट समथिंग आई डू एवरी डे बट जिम से एक दिन आने के बाद इस वीक में मेरी स्किन माथे पे बहुत इरिटेटेड फील करी थी बिकॉज मैंने रिसेंटली ब्राउज बनवाई थी। सो दिस इज द ओनली मास्क आई वुड रेकमेंड। ये कील्स का टर्मरिक एंड क्रैनबेरी मास्क है। इसको लगाने से इंस्टेंट कूलिंग मिलती है, प्रिवेंट्स एक्ने एंड ओवरऑल ग्लो भी स्किन का बढ़ जाता है। सो यू कैन डू इट वंस अ वीक इफ योर स्किन इज फीलिंग इरिटेटेड पोस्ट जिम। So now post-gym skincare is pretty easy. This is my face without any moisturizer. Just wash my face and you can see मेरा कितना चमकीला face अभी से हो रहा है without even adding anything. That is because I'm very consistent with my skincare. All the marks that I get, all the pimples that I get, वो भी time से fade हो जाते हैं because I use these products. And this is working really well for me. So first thing जो मैं spray करके गई थी Dr. Althea का Relief Mist. जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं हल्का सा लिप टिंट लगा लेती हूँ। आई लव दिस एटूड हाउस का लिप टिंट। मेरे पास 3 शेड्स है आज। मेरा थोड़ा आई एम फीलिंग रेड सर। Now while this is सूखिंग, I am gonna use this Celimax की Pore Plus Dark Spot Brightening Cream for even skin tone. Now this is also a moisturizer. At the same time इसमें जो ingredients है 5% niacinamide, 5% tranexamic acid, like जो pigmentation and dark spots होते हैं वो fade करते हैं. So that is what I'm gonna use. And ये अगर आप दिन में लगाओ तो ज़रूर इसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लेना। अगर आप इसको रात को लगाओ तो देन यू डोंट नीड एनी सनस्क्रीन, बट सन डैमेज वगैरह मत करा लेना ये सारी क्रीमें लगा के। सो वाइल दिस इज अब्जॉर्बिंग इन माई स्किन लाइक 30, 40, 45 सेकेंड्स का मैं गैप रखती हूँ बिफोर लेयरिंग ऑन अदर प्रोडक्ट्स ताकि मैं स्वाइप ना कर लूँ अपने फेस पे। सो आई यूज़ एनी लिप बाम। मैं आजकल इंडिवाइल के ये ट्राई कर रही हूँ बिकॉज ये कॉम्बो में आए थे। दिस इज़ वेरी लाइक हॉट एंड ऐसे चिली मोमो वाइब एंड दिस इज़ वेरी कूलिंग मिंटी वाइब। सो अभी मेरे को मिंटी वाइब अच्छा लगता है। इट ऑल्सो हैज़ सम sparkle specs which I really like. It sparkles. Now I will add another moisturizer because मेरी skin काफ़ी ज़्यादा यहाँ के around dehydrated रहने लगी है since I've started gymming again. All the makeup artists जिनसे भी मैंने कराया है makeup से पहले ही use करते हैं for a very beautiful base and इसका एक sensitive skin वाला version आता है which is what I'm using these days currently for my moisturizer. I think 3 products काफ़ी है। Last year आप लोगों ने देखा होगा my skin was really going through it and I feel like that was because I was applying a lot of dry shampoo on my hair.
देन जिमिंग, देन अप्लाइंग ड्राई शैम्पू, बिकॉज मेरे पास उस टाइम काम बहुत ज़्यादा था एंड हेयर वॉश का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था. एंड जब मैं जिम जाती थी वो ड्राई शैम्पू पूरा पसीनों की बूंदों में मेरे ऑयल एंड स्वेट के साथ मिक्स होता था, तो यहाँ मेरे बहुत बम्पी फोरहेड हो गया था. आई विल प्लेस सम पिक्स हियर सो दैट यू कैन सी द इंटेंसिटी ऑफ दिल्ली की और जनकपुरी की रोडों की तरह मेरा सिर हो गया था बिल्कुल. सो हैविंग अ क्लीन स्कैल्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदर देन दैट मैं अपने हेयर ग्रोथ सिरम्स यूज करती हूँ. आई डू हैव विश केयर, आई डू हैव इंदुलेखा, मेरे पास केरास्तास भी है, विच इज लाइक ऑल ऑफ दीज आर नॉट दैट स्पॉन्सर्ड एंड केरास्तास ने तो मेरे साथ आज तक काम नहीं किया, बट आई लव ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट्स. लेकिन मैं जो भी स्कैल्प पे लगाती हूँ वो मैं धो लेती हूँ, या फिर अगर मैं पूरा सिर ना धो पाऊँ, जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो यहाँ तक का पूरा एरिया मैं अपना फेस वॉश घुसा के वॉश करती हूँ, ताकि यहाँ का जो स्वेट आए जिम में नेक्स्ट डे वो मेरे को यहाँ पिंपल एंड एक्ने ना करे. यहाँ से भी स्वेट टपक के आपके यहाँ जॉ एरिया में कर सकता है. एंड इफ यू हैव पीसीओडी, आपको पता है पिंपल्स आपको वैसे ही अटैक करेंगे. योर स्किन शुड लुक लाइक दिस, लाइक नॉट द वाइट कास्ट, बट पूरा एक लेयर दिखनी चाहिए जब आप सनस्क्रीन लगाते हो, तभी वो प्रोटेक्शन हो पाएगा. इवन द विश केयर सनस्क्रीन इज रियली गुड. वो मेरा खत्म हो गया था तो मैंने ये वाला मंगा लिया, बिकॉज मेरी जॉब ऐसी है ना, मेरी जॉब ऐसी है कि मैं एक प्रोडक्ट पे टिक नहीं पाती हूँ. मुझे नए प्रोडक्ट अगर कोई कोलैबोरेशन आई है, आई हैव टू गिव इट अ फेयर शॉट, एंड मेरे को कुछ दिन के लिए वो ट्राई करना होता है, एंड देन आई हैव टू गिव माई रिव्यू. एंड इफ इट डजंट वर्क आउट फॉर मी, देयर इज अ होल डिफरेंट कॉन्वर्सेशन विद द ब्रांड कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती. बहुत ही ज्यादा भसड़ हो जाती है. बट दिस इज द स्किन केयर रूटीन एट होम. थोड़ा ब्लेंड करना इसको मुश्किल हो गया, बट दिस इज वॉट माई फेस looks like जिम से आने के बाद, एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट. सो दिस वाज डे 1 ऑफ माय वर्कआउट, एंड उसी रात को मैंने अपना केरास्तास वाला सिरम लगाया. आई गेव यू 3 ऑप्शंस, विश केयर का, इंदुलेखा का एंड केरास्तास का. ईदर ऑफ द 3 आप ले सकते हो. दिस इज ग्रेट फॉर मॉनसून सीजन का हेयर फॉल, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग इट राइट नाउ. देन मैं लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सिरम लगा के बालों को कंडीशन कर देती हूँ. सो आई एम टेकिंग 3 बिग पम्प्स एंड अच्छे से ऑयलिंग टाइप का मैं कर रही हूँ अपने एंड्स पे. इसको मैं सुबह वॉश करने वाली हूँ. आई वॉश माई हेयर एवरी ऑल्टरनेट डे. आई टेक अ बाथ एवरी सिंगल डे पोस्ट gym. These are the body washes I love. Topic of discussion, boardroom in Bora Bora, दोनों body loving के हैं. And this when I'm feeling super fancy because this is too expensive to be used every day, but इसमें बहुत अच्छी almond oil की खुशबू आती है. For scalp once a week I do the Redken Amino Mint shampoo. ये एक clarifying shampoo है. Face scalp पे किसी भी तरह का build up नहीं होने देता है. Every alternate day use करती हूँ L'Oreal का Hyaluron Pure वाला range, and साथ में Love Beauty and Planet का Argan Oil Lavender वाला जो hair mask है. It is amazing. Most of these products are very affordable. Now after taking a bath मैं vitamin C lotion Pixi का लगाती हूँ. I have 2 second option भी मैं बताती हूँ. Now मेरी underarms पहले से better तो हो गई है because I have been treating them, but जो stubborn pigmentation रह जाती है वो मैं अपने underarms में लगाती हूँ, and also on my ass because जिम की शुरुआत में मेरे को वहाँ भी बहुत पिंपल होने लगे थे. एंड ये एरेंसिया वाला भी आप ले सकते हो, विटामिन सी. अपार्ट फ्रॉम दैट, टू कंडीशन माई बॉडी मैं ये विक्टोरिया सीक्रेट का कोकोनट ऑयल वाला लगाती हूँ बिकॉज दिस इज सो नरिशिंग. गर्लीज हु वर ओवरवेट लाइक मी एंड जिन्होंने अभी फैट लॉस किया उनको पता होगा कि उनके बूब्स या फिर कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी एकदम सैग भी हो जाते हैं. इट कैन बी विद वेट लॉस और विद एज, लाइक आफ्टर योर 30s. सो उनको पर्क अप करने के लिए आई थिंक ऑयलिंग इज अ ग्रेट थिंग. नाउ फॉर फेस वॉश आई हैव रिसेंटली बीन ट्राइंग दिस रीजू ग्लो फेस वॉश. एक रील मेरे सामने आई थी जिसमें लड़की अनस्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशंस दे रही थी फॉर एक्ने. नाउ मेरे को एक्टिव एक्ने अभी है नहीं, बट मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, तो मैंने सोचा दिस इज द राइट टाइम कि मैं ये यूज करना स्टार्ट कर दूं बिकॉज इसमें सैलिसिलिक एसिड है, तो स्किन की क्लैरिटी के लिए भी अच्छा रहेगा. सो आई यूज्ड दैट. देन गीले बालों को बस मैंने फिर से वही लॉरियल का सिरम लगा के थोड़ा कंडीशन कर लिया. एंड आजकल मैं हीट बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, सो आई जस्ट लेट इट एयर ड्राई. सो दिस वाज माय बॉडी स्किन एंड हेयर केयर रूटीन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नाइट टाइम स्किन केयर. आई कीप माय नाइट टाइम रूटीन फेयरली सिंपल. सबसे पहले वही डॉक्टर अल्थिया की 345 रिलीफ क्रीम मिस्ट. 1.5 month बैक आई स्टार्टेड इंक्लूडिंग रेटिनल शॉट्स इन माई स्किन केयर रूटीन, एंड ये है सेलीमैक्स का. दिस वाज गोइंग वायरल ऑल ओवर सोशल मीडिया, सो आई वांटेड टू ट्राई इट फॉर माय फाइन लाइंस. रेटिनल रेटिनॉल से ज्यादा सेफ होता है एंड इतनी ज्यादा पर्जिंग या ब्रेकआउट्स कॉज नहीं करता है. जहां जहां सिर्फ मेरी फाइन लाइंस होती है वहीं पे मैं मटर के भी आधे का आधा दाना लगाती हूँ, लाइक अराउंड माई आईज. फोरहेड पे जरूर बिकॉज आई कैन सी सम लाइंस देयर. नेक पे काफी लगाती हूँ क्योंकि एजिंग वहां सबसे पहले दिखती है. इसमें वो हल्की सी सुइयों वाली टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है. एंड अगर पहली बार आप ट्राई कर रहे हो, प्लीज इसको वीक में एक बार ही यूज करना रात को. आफ्टर दैट आई गो इन विद द पोर प्लस डार्क स्पॉट ब्राइटनिंग क्रीम बाय सेलीमैक्स. इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है फॉर पीएम रूटीन. सो इट्स जस्ट
ग्रेड के रेटिनल से आप स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो एंड थोड़ा सा उसको रिवाइव करा रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर मॉइस्चराइजिंग इट, क्योंकि ये सारी चीजें स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है। आई डू डबल प्रोटेक्शन। सो क्योंकि मैंने पहले मिस्ट लगाई थी, इसका क्रीम वर्जन भी मेरे पास है, डॉक्टर अल्थिया 345 रिलीफ क्रीम। सो लास्ट स्टेप ये है जो मैं अपनी स्किन पे लगाती हूँ। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको रेटिनल वगैरह नहीं यूज करना है बट यू स्टिल हैव एक्ने और एक्ने मार्क्स, दिस प्लम का ब्लैक राइस एंड नाइसिनामाइड TXA 10% नाइट क्लैरिटी जेली सीरम इज व्हाट आई यूज ऑन द डेली। सो ये मैं रोज रात को लगाती हूँ, क्लब्ड विद माय डॉक्टर अल्थिया मिस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आई ईट इन अ डे। दिन की शुरुआत मैं कोकोनट वाटर से करती हूँ ऑफ कोर्स, एंड माय 25 ग्राम प्रोटीन का प्रोटीन शेक जो कि है बेसिक्स वुमन का इन मार्शमेलो फ्लेवर। इट्स अ प्लांट प्रोटीन, सो एक बहुत गाढ़ा सा होता है बट आई क्वाइट लाइक द फ्लेवर एंड द टेक्सचर। इसके साथ आई एम टेकिंग 5 सोक्ड आलमंड्स, 4 सोक्ड वॉलनट्स एंड 1 सोक्ड अंजीर। ये दो चीजें सबसे पहले मैं लेती हूँ उठते ही। After that, I keep my breakfast simple with 1 बेसन चीला and 4 boiled egg whites. आप अगर एग्स नहीं खाते हो तो आप पनीर भुर्जी बना के बेसन चीला में स्टफ करके टाकोस खा सकते हो। I forgot to take the clip, लेकिन मैंने कोकोनट मिल्क में कॉफी भी पी थी। जिम से आने के बाद I make a super easy smoothie with an apple, Greek yogurt and overnight soaked chia seeds for fiber. It's very important कि आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो आप फाइबर भी अच्छा खासा लो एंड पूरा दिन पानी अच्छे से पीते रहो। यूजुअली मैं कोई भी भारी लंच नहीं करती हूँ एंड यही स्मूदी मेरा लंच होता है। ऑल्सो आई फिनिश ईटिंग डिनर बाय 6 PM विद प्रोटीन पैंट्री सोया रोल। जो रोटी होती है इसकी इट्स मेड इन प्रोटीन आटा एंड इसको हम एक एग में रोल कर लेते हैं, बट आप इसको वेजिटेरियन वे में भी बना सकते हो माइनस द एग। शिमला मिर्च आज खत्म थी तो मैंने सिर्फ अनियंस ऐड कर लिए एंड ग्रीन चटनी में भी थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट लगा लिया एंड बिकॉज बैलेंस इज इंपॉर्टेंट आई हैव अ डाइट कोक विद इट। ये मैं रोज नहीं पीती हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है सोया चाप के साथ। सो दैट्स अ फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर मी। रफली 1300 से 1400 कैलोरीज है। मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 1600 है। अभी मैं थोड़ा सा डेफिसिट कर रही हूँ तभी मैं 1400 कैलोरीज ले रही हूँ एंड इट इज अराउंड 90 to 95 grams of protein which is honestly very good with plenty of fiber and whole foods. I also want to include more veggies in my diet, so let me know मैं क्या और कर सकती हूँ। I'm open to constructive feedback. Now this is the rough estimate of what I ate, कितना प्रोटीन था, कितने carbs थे, fat, fiber, everything. And if you want me to do a vegetarian what I eat in a day, I'll be down to do that too. So comment करो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। Thank you so much guys for watching this video. अगर आपको डे टू डे अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे ब्रॉडकास्ट पे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल है दैट क्वर्की मिस एंड मेरा ब्रॉडकास्ट है दैट क्वर्की शो। एंड अगर आप यहाँ यूट्यूब पे नए हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट फ्राइडे। बाय।